Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. Open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba. O Allah, I am pleased with you as my Lord. Wabil Islami Deena, and I am pleased with Islam as my religion. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Nabiyya. I am pleased that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is your Nabi, your prophet, our guide, our role model. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kindly share the screen. Afterwards, I will play the tilawat first. So welcome my dear sisters and brothers. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 3 सूरत अल-बकरा आयत नंबर 270 onwards. तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए. 270 नंबर की आयत से तिलावत होगी. मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? टॉपिक इज अबाउट सदका, है ना, चैरिटी. और हमने पढ़ चुके हैं कि सदका जो है वो सिर्फ माल का नहीं होता. हर भली चीज, हर वो चीज जो किसी के काम आए वो आप शेयर कर दो. हर वो चीज जो आप शेयर करो वो आपके लिए सदका बन सकती है. चाहे आपकी मुस्कुराहट हो, चाहे किसी को कंपनी देना हो, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, चाहे कुरान पढ़ाना हो, एक हदीस सिखाना हो, चाहे किसी को आप स्कूल की पढ़ाई में हेल्प कर दो,
چاہے کسی کو اگر بینک اکاؤنٹ کھولنا نہیں آتا ہے تو آپ اس کی بینک اکاؤنٹ کھولنے میں ہیلپ کر دو, کسی کا بزنس سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کر دو, کسی کی کوئی اچھی کوالٹی ہے تو اس کوالٹی کے ذریعے اسے اگر آپ کسی کام میں سیٹ کر سکو, کسی کے لیے آپ سفارش کر سکو, اسے جاب مل جائے, الحمدللہ. سو آل دس کین بی یور صدقہ. آج ہم صدقے کے بارے میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کتنا یہ واسٹ ٹاپک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بارے میں بتاتے جا رہے. سو of course it has to be very important and valuable in the sight of Allah, isn't it? کہ آپ کو کیا لگتا ہے ثنا کہ اتنی آیتیں آ رہی ہے صدقے کے بارے میں, تو کیا ویلیو باجی, ہے اس اللہ تعالیٰ is trying to put emphasis on this. فوکس اپون اس, ہے نا. اور کیا Yes. فوکس ہے, سبحان اللہ. بھی آج ہم دیکھیں گے کہ صرف فوکس ہی نہیں, ہم کو اور کیا ملے گا. ابھی تک تو بہت دیکھ چکے کہ ایک دانے کے بدلے 700 ملیں گے, ہے نا, منیمم. پھر مغفرت بھی ملے گی, پڑھ چکے ہم لوگ. اور کیا ملے گا, فضل بھی ملے گا اللہ کا. اور کیا ملے گا, اللہ کی طرف سے حکمت, وزڈم, گائیڈنس بھی ملے گی. سبحان اللہ. اور ہم نے مانگی بھی نہیں مغفرت تو بھی ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے, ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہم پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی. یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آج. اوکے, آیت 270 اسکرین پر بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. آیت 270, وما انفقتم, اور جو کچھ خرچ کرو گے تم, جو کچھ صدقہ کرو گے تم, whatever you spend in charity, من نفقتن, کوئی چیز. دیکھیے یہاں پر آ گیا ہمارے سوال کا جواب. کوئی بھی چیز, بڑی چھوٹی, پیسہ, مسکراہٹ, ہیلپ, anything that you give in charity. او یا نظر تم, یہ کیا آ گیا نیا ورڈ, نظر تم. نظر کا مطلب ہوتا ہے وعدہ, منت, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں منت, نیت. In English we can call it a vow, that you vow to do something, کوئی promise. من نظرن, کوئی نظر, کوئی منت, کوئی ڈیل. اگر تم نے کوئی منت مانگی یا کوئی صدقہ آلریڈی کر دیا, فَإِنَّ اللَّهَ, پھر بے شک اللہ, يَعْلَمُهُ, وہ جانتا ہے اس کو. اللہ knows very well کہ تم نے صدقہ دیا یا منت مانگی یا دل میں کوئی نیت کی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ, اور نہیں ہے لیے ظالموں کے, من انصار, کوئی مددگار. ظالموں کے لیے there is no helper. تو پھر یہ ظالم کس کو کہا گیا, یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. یہاں ظالم کس کو کہا گیا, جو صدقہ نہ کرے, جو کنجوسی کرے. سمجھ میں آ گیا ہے. ہر آیت میں اگر جو بھی کسی آیت میں ظالم ورڈ آتا ہے نا, ظالمینا, تو اسی آیت میں جو ٹاپک چل رہا ہے نا اس کو اپوزٹ کر لیجئے تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن اس آیت کی سمجھ میں آ جائے گی, میننگ. گاٹ اٹ. تو ظالم جو ہے اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں. ظالم کبھی سکسیسفل نہیں ہوگے. اور اس آیت میں ظالم کون ہے, جو صدقہ نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں, نظر کی بات ہو رہی ہے. نظر کیا ہے, منت کیا ہے, لکھ لیجئے کہ منت مانگنا. آپ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے منت مانگنا؟ بتاؤ, کوئی ایگزامپل دو. باجی, لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو ایسا کریں گے ویسا کریں گے, وہ I ہاں think so that is منت. ایگزیکٹلی. یعنی اگر میری خواہش پوری ہوئی تو میں یہ صدقہ کروں گا. اگر انہوں نے کہا میرا بیٹا ہوا تو میں عمرہ کو جاؤں گی. اگر کچھ لوگ ایسے بھی نیت کرتے, اللہ یہ ہماری اوپر مشکل آ گئی ہے, یہ مشکل ہٹ جائے تو پھر میں ہے نا
10 रोजे रखूंगी, तो ये किसके साथ डील कर रहे हो तुम? अल्लाह के साथ। बेटिंग हो रही है क्या? ये बेटिंग हो रही है अल्लाह के साथ। तो ये नजर मानना ये बिल्कुल नापसंदीदा है। इट इज नॉट लाइकेबल नाइदर बाय अल्लाह नॉर अल्लाह's रसूल। तो आप नजर के बारे में लिख लीजिए, मन्नत नजर, इसके बारे में लिख लीजिए कि वो काम, इसकी डेफिनेशन है, वो काम जो फर्ज नहीं, वो काम जो फर्ज नहीं लेकिन उसे अपने ऊपर लाजिम कर लेना। वो काम जो फर्ज नहीं उसे अपने ऊपर लाजिम कर लेना, यानी कंपलसरी कर लेना, जबरदस्ती। तो अल्लाह ने तुम पर फर्ज नहीं किया है और तुम ऐसी डील कर रहे हो। अब ये डील क्यों नापसंदीदा है? इसलिए कि तुम अल्लाह के साथ शर्त लगाते हो कि अल्लाह मैं ये नेकी का काम करूंगी, लेकिन अगर तू मेरा कुछ काम कर दे तो ये कैसी डील हुई? इससे बेहतर ऑप्शन क्या है? इससे बेहतर ऑप्शन क्या है बताओ? फातिमा, किश्वर, आई हैव मेड यू आल्सो द को-होस्ट, आप लोग भी बोल सकते हो। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है खदीजा? जी सदका करना। सदका करना, वेरी गुड। एक ऑप्शन है कि आप पहले सदका करो और फिर अल्लाह से क्या करो? दुआ करो। पहले क्या कर लो? आप सदका कर लो, यानी पहले आप अपनी तरफ से पहल करो, सदका कर लो और अल्लाह से दुआ करो, isn't it? ये बेहतर ऑप्शन है उससे। या वी हैव सुरैया आल्सो, वेरी गुड। ठीक है, अब अल्लाह ने हमें ये बताया कि जो कोई सदका करे या नजर करे, अल्लाह उसको खूब अच्छे से जानता है और जालिमों को अल्लाह नहीं देता। एक हदीस लिख लीजिए नजर के बारे में और मन्नत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर ब्रैकेट में मन्नत लिख लीजिए, नजर या मन्नत किसी की तकदीर नहीं बदल सकती, फुल स्टॉप। नजर या मन्नत किसी की तकदीर नहीं बदल सकती। और नीचे लिख लीजिए ये नापसंदीदा है। तो अगर हम में से कोई अभी भी ऐसी मन्नतें करता है तो वी हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। हाँ, लेकिन इसका एक फायदा है। क्या फायदा है? कि कोई एकदम कंजूस है, सही बुखारी में आता है कि कोई इंसान बहुत कंजूस है और वो कभी भी सदका नहीं करता, तो हो सकता है कि वो है ना ऐसी मन्नत मांगने की वजह से ही सदका कर दे। तो बस ये एक फायदा नजर आता है, बाकी और कोई फायदा इसमें नहीं है। ओके, सो दैट वाज अबाउट 270। 271, इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो, स्वदकाती, अपने सदके को, इफ यू पब्लिकली डोनेट, फनिइम्मा हिय, फिर कितना ही अच्छा है वो सदका। कि तुम उसे कैसे कर रहे हो? जाहिरी तौर पर सदका कर रहे हो, लोगों के सामने दिखाकर कर रहे हो, वो भी अच्छा है। वह इन, और अगर, तो खुफूहा, तो खुफू में खुफिया वर्ड नजर आता है। खुफिया का मतलब क्या होता है? प्राइवेटली, सीक्रेटली। तो और अगर तुम छुपा कर सदका करो, खुफिया तौर पर, सीक्रेटली, वतुहा, और तुम दो उनको, अपने सदके को, किसे दो? अल फुकरा, तंग दस्त को। फकीर हम लोग समझते हैं कि सिर्फ फकीर वो जो मांगे, लेकिन फकीर इतना तंग दस्त है कि वो ना मांगे तो क्या करे? उसकी हालत ऐसी है कि ना खाने को है, ना पीने को है, ना घर है, ना कपड़ा है, ना दवाई है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो फकीर, आप देखोगे रोड साइड्स पे झुग्गी बना बना कर वो लोग सोते हैं और पब्लिक टैप्स में से पानी लेते हैं, है ना? तो अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम दो उनको, फकीरों को, जरूरतमंदों को, फहुवा खैरुल लकुम, फिर वो बेहतर है लिए तुम्हारे। कैसे दो? प्राइवेटली दो तो वो तुम्हारे लिए पब्लिकली देने से बेहतर है। खुले आम सदका करने से बेहतर कौन सा सदका है?
कि तुम छुप कर दो। इसका ये मतलब नहीं कि हम पब्लिकली नहीं दे सकते, हाँ कभी पब्लिकली भी दो, कभी प्राइवेटली भी दो, लेकिन इसमें हिकमत क्या नजर आती है आपको? कब प्राइवेटली देना चाहिए और कब पब्लिकली देना चाहिए? कोई हिकमत समझ आई? यानी बड़ी बोलो जल्दी जल्दी। बाजी हम अगर दिखा कर देंगे तो दूसरे भी मोटिवेट हो जाएंगे देने के लिए। हाँ, कि अगर कोई इतना फकीर है, वो आके मांग रहा है, उसकी जरूरत नजर आ रही है, उसका खून बह रहा है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसको एडमिट करना है, तो आपके अकेले के सदके से तो काम नहीं बनेगा। तो ऐसे वक्त में अगर आप खड़े हो और सबके सामने दो और लोगों को बोलो कि भाई आप भी अगर कुछ दे दो तो इसका काम बन जाए, सो वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र भी हो जाएगा और उस बंदे का भी काम हो जाएगा। तो ऐसे बंदे को छुपा कर देने में कोई हिकमत नहीं है। हम हिकमत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली क्लास में आया, हमने पढ़े, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सदका करता है अल्लाह उसे हिकमत भी देता है। फिर सदका करते करते उसका दिमाग और उसमें चलने लगता है कि कब उसे सीक्रेटली देना है, कब ओपनली। अब सीक्रेटली कब देना है बताओ, बोलो। जब हमारे देने से उसका काम बन जाए बाजी, और हमारे उसकी पर्दा इज्जत। पोशी के लिए इज्जत बची। हाँ, उसकी इज्जत भी बची रहे, उसकी पर्दापोशी भी हो जाए। क्योंकि अब ये किसके साथ करना चाहिए? मिस्कीन के साथ। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन गरीब, फकीर एंड मिस्कीन? मिस्कीन की डेफिनेशन कौन बताएगा, जल्दी बोलो। मिस्किन वो है वाइट कॉलर पीपल जो जिसको हलाल रोजी कम पड़ती बाजी, बट वो फकीर नहीं है, फकीर नहीं है वो वो। मेहनत कर रहा है, हलाल रोजी कमा रहा है, लेकिन उसके खर्च पूरे नहीं होते और फिर भी वो नहीं मांगता, फिर भी वो नहीं मांगता, तो ये है मिस्कीन। अब ऐसे को तुम सबके सामने दोगे तो वो तो मांग नहीं रहा है ना, उसको तो अपनी इज्जत प्यारी है, तो फिर उसको तुमको छुप कर देना है। और उसको इज्जत प्यारी है तो तुम उसे एज अ सदका, मीन्स आपका तो सदका ही होगा, लेकिन उसे आप गिफ्ट के तौर पर उसकी इज्जत करके दे, उसे कोई फटी पुरानी चीज ना दे, है ना। इंशाल्लाह। तो ये हो गई हिकमत। अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर का मतलब हो गया ना कि तुम्हारे लिए तो फायदा है। अब वयुकफ्फिरु अनकुम, और वो दूर कर देगा तुमसे। वयुकफ्फिरु अनकुम, अल्लाह दूर कर देगा तुमसे। अल्लाह विल एब्सॉल्व क्या? मिन सय्यिआती कुम, तुम्हारी बुराइयों को। अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा, दूर कर देगा तुमसे। अभी बुराई को दूर कर देने का मतलब क्या होता है? बुराई को दूर कर देने का मतलब गुनाह माफ होंगे और हम गुनाह छूट भी जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है कि गुनाह माफ भी होंगे और गुनाह छूट भी जाएंगे। दैट मीन्स अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराइयां है ना, तो वो बुराइयां तुम्हारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। बिकॉज अब तुम्हारा जो मकसद है, तुम्हारा फोकस जो है, वो बहुत ही बड़े मकसद के लिए तुम काम कर रहे थे। अभी तक तुम्हारे पास फालतू टाइम था, तो तुम कुछ कभी गलत कामों में या कोई ऐसे कामों में लगते थे कि जिसमें ना तुम्हारा फायदा होता था ना नुकसान। लाइक आप कोई गेम्स खेल रहे हो, या आप सब किटी पार्टी कर रहे हो, या ऐसे कामों में लगे हुए थे, बिकॉज यू हैड सो मच एक्स्ट्रा टाइम और पैसे भी थे तुम्हारे पास। अब तुम क्या कर रहे हो? अपने पैसे से किसी की मदद कर रहे हो। आप जाते हो, हॉस्पिटल विजिट्स करते हो, आप जाते हो ऑर्फनेज विजिट करते हो, ओल्ड एज होम्स विजिट करते हो। तो इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो आप वो कितनी सारी बुराइयों से, अपना टाइम वेस्ट करने से बच गए या नहीं, बताओ। अच्छा, टाइम वेस्ट करना अपने आप में बुराई है या नहीं? टेल मी। बुराई है वेस्टिंग योर बाजी। टाइम, है ना, हमने पढ़ चुके हैं। वल अस्र, तुम्हारा टाइम, योर टाइम इज रनिंग आउट,
तुम्हारे पीछे कौन भाग रही है, तुम्हारी मौत कब आएगी पता नहीं, कब टाइम खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो अपनी जिंदगी का हर सेकंड हमें कहाँ लगाना है? बिल्कुल प्रोडक्टिव कामों में, नेकियों में। तो देखिए हो गया ना कि आपसे अल्लाह ने आपकी बुराइयों को दूर कर दिया। अगर आप पहले कंजूस थे तब आपकी कंजूसी भी खत्म हो गई, है ना। पहले आप बहुत दिखा दिखा के सदका करते थे, लेकिन अब आप दिखाना आपने कम कर दिया। सुभान अल्लाह। तो आपकी बुराइयां भी दूर कर दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात मिलती है कि हम पर आने वाली कोई मुसीबत जो होती है ना, हम पर कोई आने वाली मुसीबत जो अल्लाह ने क्या कर दी थी, हमारे लिए लिख दी थी, लेकिन सदका करने से वो मुसीबत टल जाती है, रुक जाती है। सुभान अल्लाह। अब वो मुसीबत कभी आई ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चला। यू गॉट इट। तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। सय्यातिकुम में अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा, तुम्हारी बुरी आदतों को, बुराइयों को रोक देगा, और तुम पर आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। सुभान अल्लाह। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, साथ जो कुछ तुम अमल करते हो, खबीर, अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह को सब खबर है, सब मालूम है तुम क्या अमल कर रहे हो और तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। अभी क्या होता है कि यानी अगर तुम जर्रा बराबर भी नेकी करो, एक पैसा भी किसी को दो, एक स्माइल भी कर दी आपने, किसी की एक थैली उठा दी, तो even if nobody appreciates, do you know, remember that Allah knows, Allah records, और अल्लाह उसका तुमको अजर जरूर जरूर देगा। वो नेक्स्ट आयत में आ रही है, खुशखबरी हमारे लिए। अब क्या होता है, समटाइम्स हम लोग कोई भलाई करते हैं, नेकी का काम, और वो क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा सदका हम सीक्रेटली करें, पर वो खुल जाता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी ना, अल्लाह को तुमको पता है कि तुम प्राइवेटली करना चाहते थे, बट अगर वो खुल गई है तो आपको पता है वो किसने खोली? अल्लाह के इज़्न से बाजी। अल्लाह के इज़्न से। तो अब इसमें तुम्हारा दिखावा नहीं हुआ। तो फिर ये क्या हो गई, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुमको और नेकी मिले, एनकरेजमेंट लोगों को हो जाए इससे। मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त वाकया पढ़ना चाहती हूँ, एंड यू विल बी रियली शॉक्ड टू लिसन टू दिस। सही बुखारी और सही मुस्लिम का वाकया है, सुनना चाहते हैं? जी बाजी। यस, सुन लीजिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में अगर कोई हदीस हो तो उस हदीस को क्या कहते हैं? सही है। क्या कहते हैं? सही है मीन्स बोथ द सही। एक शख्स ने इरादा किया कि आज रात में सदका करूंगा। हाँ, ये रात और दिन की भी बात आएगी अभी नेक्स्ट आयत में, तो उसी से रिलेटेड ये वाकया है। तो उसने नियत की कि आज रात में सदका करूंगा। वो अपना सदका लेकर निकला, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी, और छुपके से एक औरत को देकर चला आया। सुबह लोगों में ये बातें होने लगी कि आज रात कोई शख्स एक बदकार औरत, प्रोस्टिट्यूट को कोई सदका दे गया। अब उस आदमी ने भी सुना और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने फिर से नियत की कि आज रात में और सदका करूंगा। जस्ट लुक एट हिम। हाँ, सदका लेकर निकला, एक आदमी की मुट्ठी में रखकर चला आया। सुबह सुनता है कि लोगों में चर्चे हो रहे हैं कि आज रात एक मालदार को कोई सदका दे गया। उसने किसको सदका दे के आया? एक वेल्दी मैन को, मालदार को। तो उसने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और नियत की कि आज रात को, तीसरी रात भी मैं सदका करूंगा।
اب وہ صدقہ دے آیا, دن میں معلوم ہوا, چرچے ہوئے کہ وہ صدقہ تو ایک چور کے ہاتھ میں دیا تھا. کس کے ہاتھ میں؟ فرسٹ کس کے ہاتھ میں دیا؟ پروسٹیٹیوٹ کے. سیکنڈ ایک ویلدی آدمی, اور تھرڈ چور کو. چور کی. ہاں. اب یہ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. وہ کہنے لگا, اے اللہ, اے میرے رب, تیری تعریف اور تیرا شکر ہے, بدکار عورت کو دیے جانے پر بھی, مالدار کو دینے پر بھی, اور چور کو بھی دینے پر بھی. اب خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اب اس کو فورتھ نائٹ اس کو خواب آیا کہ ایک فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے. شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے. ہو سکتا ہے وہ پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ مل گیا تو وہ غلط کام سے رک جائے, اور ہو سکتا ہے اسے ہدایت مل جائے. مالدار کو صدقہ دینے سے ہو سکتا ہے اس مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقہ دینا شروع کر دے. اور تھرڈ, شاید چور مال پا کر چوری سے رک جائے. حدیث ہوا. You got it? So آپ کا صدقہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, آپ کی انٹینشن اچھی ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگا. ابھی آگے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کہاں پہنچے, کیسے پہنچے, کب پہنچے, کیوں پہنچے. اوکے, الحمدللہ. تو کیسی لگی یہ حدیث؟ بہت اچھی باجی. الحمدللہ. اوکے چلے, ابھی کیا پڑھنا تھا؟ اور ہاں, ابھی یہ جو حدیث ہم نے پڑھے نا, تو اس کا مورل لکھ لیجئے کہ نیکی کا راستہ بتانے والا, نیکی کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے کیا ہو. تو اس نے تو خود بھی کیا اور نیکی کا راستہ بھی بتایا, تو آپ سوچئے کہ کیسے اس کا قبول نہ ہو. پھر یہاں پر آیا تھا چھپا کر یا بتا کر. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے, اور بہت بار ہم لوگ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 7 شخص, 7 پرسنالٹیز قیامت کے دن اللہ تعالی کے سائے میں ہوں گے. جس دن اللہ کے سائے کے سوا, اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پتہ ہے نا یہ حدیث, 7 ٹائپ آف پیپل انڈر دا شیڈ آف دی عرش, پتہ ہے؟ جی ابھی آپ کو پتہ ہے یہ 7 لوگ کون ہیں؟ لکھنا ہے تو فٹافٹ لکھ لیجئے, ریویژن بھی ہو جائے گا. کون ہے یہ 7 لوگ؟ نمبر 1 عادل بادشاہ. عادل بادشاہ, عادل بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ انصاف پسند بادشاہ, a just king. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. نمبر 2, وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے, یعنی جوانی کی عبادت کرنے والا. اوکے. نمبر 3, وہ دو لوگ جو اللہ کے خاطر آپس میں محبت رکھے. وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھے اور اسی پر جمع ہو, یعنی فرم رہے, اور اسی پر الگ ہو, یعنی اللہ کی محبت کی خاطر ملے اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی دور بھی ہو جائے. تو یہ 2 لوگ. فورتھ وہ مومن جس کا دل مسجد میں لگا رہے. فورتھ کون ہے؟ وہ مومن جس کا دل مسجد میں لگا رہے. ابھی ہم لوگ تو مسجد نہیں جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگا رہے, اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگا رہے. ففتھ
वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करके रोए, वो शख्स जो तन्हाई में अकेले में अल्लाह का जिक्र करके रोए। सिक्स्थ, वो शख्स जिसे कोई पावर वाली या खूबसूरत औरत बदकारी की तरफ बुलाए, बेहयाई की तरफ बुलाए और वो कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। एग्जाम्पल यूसुफ अलैहिस्सलाम। 7, वो शख्स, अब ये 7th वाला ध्यान से सुनिए, वो शख्स जो अपना सदका इस तरह छुपा कर दे कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के सदके की खबर तक ना पहुंचे, कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के किए हुए सदके की खबर भी ना हो। अब ये 7th पॉइंट के बारे में क्या कहना है आपको? ये सदके के बारे में कि सदका इस तरह से छुपा कर दूसरे से बाएं हाथ को खबर ना। बाजी नो रियाकारी एट ऑल। सीक्रेटली देना एकदम बाजी। और गिन एक मिनट। बाजी सलाम वालेकुम। हम लोग हाँ, भी जो बोलो। मिल रहे हैं अल्लाह को खातिर ही मिल रहे हैं ना। वेरी अपने जो गुड, बोला वेरी गुड Yes. फातिमा, गुड पॉइंट। हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, रोज मिलते हैं और मिलते भी फिजिकली नहीं, अल्लाह की खातिर मिलते, अल्लाह की खातिर जुदा होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमें अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमा। और बाएं हाथ को पता ना चले का क्या मतलब? बाजी ऐसा से गिन के ऐसा टटोल के और चेक करके नहीं देना, जो भी हाथ में आए दे दे और सीक्रेटली दे दे बाजी। एग्जैक्टली कि जब आप अपना पर्स खोलते हो या पॉकेट में से पैसे निकालते हो तो पैसों की नोट्स की क्या होता है, बंडल होता है, थप्पी होती है, उसमें से आपको दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है कि आप लेफ्ट हैंड से पैसे पकड़े राइट हैंड से आप उसे गिने और आप उसमें से सोचे कि मुझे 50 रुपया देना है, तो आपने 10-10 की 1 2 3 4 5 नोट्स गिने, आपके दोनों हाथ यूज हुए, तो आपने बहुत सोच समझ कर सदका किया। और दूसरा सदका है कि आपने पॉकेट में हाथ राइट हैंड डाला, जो हाथ में आया बगैर सोचे समझे वो आपने दे दिया, विदाउट इवन टचिंग योर लेफ्ट हैंड टू काउंट इट। गॉट इट? तो ये है, तब होगा अर्श के साए में जगह, तब मिलेगी जब ऐसा सदका करने वाले हम बन जाए इंशाल्लाह। ओके। अंजुमा जी, वो नजर पे आपने 2 हदीस बताए थे, वो दोहरा सकते हैं? मुझे लिखना है। नजर की हदीस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर किसी की तकदीर नहीं बदल सकती, फुल स्टॉप। और नजर मानना नापसंदीदा है। अभी आप लोगों को एक और बहुत जबरदस्त हदीस पढ़कर सुनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। आपने सुनी भी होगी नो डाउट, बट इट फिट्स विद दिस आयत। मुस्नद अहमद की रिवायत है। ये जो अभी हमने पढ़े ना कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, उसके बारे में सुनिए कितनी अल्लाह के पास कदरदानी है ऐसे शख्स की। ओके, सो व्हाट अ मोटिवेशन। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया था, जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया था तो वो हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिए ताकि वो जमीन हिलना बंद हो जाए। तो फरिश्तों को पहाड़ों की ऐसी पावरफुल, ऐसे स्ट्रॉन्ग पहाड़ों को देखकर फरिश्तों को ताज्जुब हुआ
They were surprised. फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तेरी मखलूक में, तेरी तमाम क्रिएशन में पहाड़ों से ज्यादा सख्त चीज भी कोई है? Is anything stronger than the mountains? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, लोहा। क्या दिया आंसर? लोहा, आयन। आपको पता है कि आयन के क्रेन्स, आयन के लोहे के जो वो कुदाल फावड़ा होता है और इम्प्लीमेंट क्या होते हैं सारे आपके व्हाट डू यू कॉल देम, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, ये किसके बने होते हैं? लोहे के। तो उससे पहाड़ को तोड़ा जा सकता है ना, काटा जा सकता है। इसलिए अल्लाह ने क्या जी बाजी। फरमाया कि पहाड़ों से भी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ने लोहा बनाया है। तो फिर फरिश्तों ने पूछा अच्छा, तो फिर क्या लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, आग, फायर। क्योंकि लोहा जो है आयन, उसको आग में तपाकर मोल्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। तो फिर लोहे से स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? आग, फायर। फिर पूछा या रब, क्या आग से भी ज्यादा कोई चीज सख्त है? एनीथिंग स्ट्रॉन्गर देन फायर? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, पानी, वाटर। क्योंकि पानी तो आग को बुझा देती है। तो फिर क्या स्ट्रॉन्ग है? पानी। फिर पूछा अच्छा, पानी से स्ट्रॉन्ग? फरमाया हाँ, हवा। क्योंकि हवा जो है पानी का रुख बदल देती है। तो फिर पूछा अच्छा, हवा से भी स्ट्रॉन्ग कुछ है? अब सुनिए, अब फाइनली अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इंसान जो इस तरह सदका करता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के सदके की खबर नहीं होती, वो इंसान, ऐसा सदका करने वाला उस हवा से भी सख्त है, उससे भी स्ट्रॉन्ग है। सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन? तो कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर, कितना बड़ा दिल होना चाहिए उस शख्स का कि वो ऐसा सदका कर सके, isn't it? And again I am repeating, सदका is not only money, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम दिल खोल के शेयर करो। आपका घर है, लोगों को आप बुला के अपने घर में बैठा सकते हो। आपकी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में लोगों को आप लिफ्ट दे सकते हो। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, यूज देम फॉर पीपल। यू हैव वाटर इन योर टैप्स, यूज देम फॉर पीपल। आपकी जबान, आपका दिमाग, आपके कान भी, आप किसी की बात सुन लो, आपके लिए सदका है। अच्छी बात सुन लो, किसी की तकलीफ सुन लो, किसी की परेशानी सुन लो। क्योंकि किसी को अपनी बात शेयर बस कर देने से ही उनको रिलीफ मिल जाता है, जो लोग स्पेशली डिप्रेशन में होते हैं। तो क्या, कैसी थी ये हदीस, बताओ मुझे। जबरदस्त हदीस थी बाजी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अभी एक और छोटी सी हदीस लिख लीजिए, वन लाइनर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा कर सदका करना, छुपा कर सदका करना अल्लाह के गजब को बुझा देता है। फुल स्टॉप। छुपा कर सदका करना अल्लाह के गजब को बुझा देता है। तो आप इमेजिन करें कि हमने कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह गजबनाक ना हो हम पर? बिल्कुल हो सकता है। तो उस गजब को कैसे बुझाए? अपने सदके को छुपा कर करके, इंशाल्लाह। अब एक और हदीस सुन लीजिए। अफजल सदका, अफजल समझते? अफजल सदका वो है जो पोशीदगी से किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए, छुपाकर किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए, बावजूद माल की किल्लत के। यानी यू योरसेल्फ हैव लिटिल, फिर भी अल्लाह की राह में तुमने सदका दे दिया, तो ये अफजल सदका है। यू गॉट इट?
अभी एक और छोटी सी हदीस लिख लीजिए, छुपाकर सदका देना 70 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। और वो वाली हदीस सबको मालूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, सो आई विल नॉट रिपीट दैट इंशाल्लाह। ओके, अब हम कहाँ थे? उनकी मुसीबतों और सय्यात को अल्लाह ताला क्या करता है? दूर कर देता है। इसकी भी लिस्ट लिख लीजिए आप। सदके के बदले अल्लाह क्या क्या करता है? नंबर 1 हमने क्या पढ़े थे सदके के बदले? अभी आप लोग बताइए मुझे, 1 बाय 1। पहली आयत क्या आई थी सदके के बारे में? एक दाना दोगे तो कितना मिलेगा रिटर्न में? 700 times। मिनिमम 700 अल्लाह की राह में खर्च किया तो। उसके बाद क्या पढ़े थे? सदका करने से क्या होगा? जल्दी जल्दी हिकमत बोलो। हिकमत मिलेगी बाजी। सेकंड पॉइंट, हिकमत मिलेगी। थर्ड पॉइंट, मगफिरत होगी, बगैर मांगे माफी। थर्ड पॉइंट, मगफिरत होगी। फोर्थ अल्लाह का फजल होगा। याद है हमने पढ़े थे, अल्लाह का क्या होगा? फजल होगा। फजल का मतलब क्या? कि अल्लाह तुमको बढ़ाकर इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कितने पॉइंट्स हुए? 3 या 4? 4। 4। अभी 5th है, तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। अभी पढ़े ना हमने, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ। ओके, 4th क्या है? तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। अभी 5th क्या है? अभी हमने पढ़े, अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। 6th क्या है? अभी हमने पढ़े थे, खैर कसीर, बहुत भलाइयां मिलेगी, बहुत अजर मिलेगा। नेक्स्ट, दर्जे बुलंद होंगे, दर्जे बुलंद होंगे। नेक्स्ट, गुनाहों का कफारा होगा। नेक्स्ट, आने वाली मुसीबत टल जाएगी। नेक्स्ट हिदायत मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? हिदायत मिलेगी। यू विल बी गाइडेड टू डू गुड इंशाल्लाह। ओके, चले, और फिर लिस्ट हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव टाइम, राइट? यस। 272, लैसा अलैक। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है आपकी जिम्मेदारी, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुदाहुम, कि आप उनको हिदायत दे सके। इट इज नॉट इन योर कैपेसिटी कि आप किसी को भी हिदायत दे सके, गाइड कर सके। वलाकिन अल्लाह, वो और, लाकिन लेकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ओनली अल्लाह, यहदी, वो हिदायत देता है, मयशाउ, जिसे वो चाहता है। अभी लास्ट पॉइंट हमने लिखे ना कि सदका देने से अल्लाह क्या करता है? हिदायत भी देता है। सुभान अल्लाह। आपने मांगा हिदायत? मांगी? आपने हिदायत मांगी? नहीं बाजी। सिर्फ सदका दिया। अल्लाह ने आपको सदके के बदले क्या दे दिया? अभी हिदायत भी दी। हिदायत इससे पहले आपने माफी मांगी, मगफिरत मांगी? नहीं मांगी। नहीं अल्लाह ने बाजी। आपको मगफिरत दे दी। क्या आपने फजल मांगा? नहीं मांगा, उसने आपको फजल दे दिया। क्या आपने हिकमत मांगी? नहीं मांगी, वो आपको हिकमत भी दे रहा है। क्या आपने मुसीबत टलने की दुआ की? नहीं, लेकिन आपकी मुसीबत भी टल रही है। सुभान अल्लाह। क्या आपने अल्लाह के अर्श के साए की दुआ की? नहीं, वो भी मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, एक सदका करने से
लेकिन कैसा हो फिर अब बताओ, क्वालिटी या क्वांटिटी, छुपा कर या खोल कर, कैसा हो? छुपा बाजी छुपा कर और हाँ। अच्छी क्वालिटी, वेरी गुड। और बेस्ट नियत? क्वालिटी, खालिस नियत। अभी देखो नियत के बारे में आएगा, अभी नियत के बारे में आएगा, फिर आप बोलना मुझे, ओके। वमा तुनफिकू, और जो कुछ तुम खर्च करो, जो कुछ तुम सदका करो, व्हाटएवर यू डोनेट, मिन खैरिन, खैर में से, भलाई में से, फली अनफुसिकुम, इसको सर्कल कर लीजिए, फिर लिए, अनफुसिकुम, फिर ये तुम जो सदका कर रहे हो ये तुम अपने लिए कर रहे हो, फली अनफुसिकुम, दिस इज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन गुड। अब बताओ, सदका करने से उसका फायदा ज्यादा हो रहा है या आपका फायदा ज्यादा हो रहा है? हमारा फायदा बाजी। कितने फायदे, देने वाले के कितने फायदे? तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया, एक वर्ड में आ गया जवाब, फली अनफुसिकुम, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, फायदा सारा तुम्हारा है। और तुमको अल्लाह इज्जत भी दे रहा है कि तुमको अपर हैंड दिया। हो सकता था कि तुम्हारा लोअर हैंड होता तो क्या करते, रोल रिवर्सल होता तो क्या करते, वो बेचारे गरीब क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, नथिंग। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखिए आगे, ये तो सब हमारे ही फायदे, सारे फायदे। अब आगे क्या फरमाया, वमा तुनफिकूना, और नहीं तुम खर्च करो, नहीं तुम सदका दो। अभी अगर यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे तो कैसा चलेगा, कि नहीं तुम सदका दो, फुल स्टॉप, चलेगा नहीं। आगे क्या फरमाया, इल्ला, सिवाय, सिवाय तुम्हारी नीयत क्या हो। अब नीयत पे आ गई बात, कि जब भी सदका दो तो नियत ये हो, इब्तिगा, चाहना, तलाश करना, टू सीक वजहिल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तुम जब भी सदका दो तो तुम्हारी नीयत क्या हो, अल्लाह की रजा चाहना, दैट्स इट। एक ही नीयत और कोई नीयत नहीं। क्या होनी चाहिए वो नियत, अल्लाह की रजा चाहना। बस, जस्ट टू प्लीज अल्लाह। आप ये सोचिए कि यहाँ पर अल्लाह का चेहरा है, रजा वर्ड भी नहीं है ना, तो रजा तो अल्लाह का चेहरा दिख गया। ओहो, कैन यू इमेजिन कि आपने दुनिया जिंदगी इतनी मेहनत की, आखिरत कब्र की जिंदगी गुजारी, सब कुछ किया, और अगर आपको अल्लाह का दीदार नसीब ना हो तो इससे बड़ी कम नसीबी क्या हो सकती। हाउ अनलकी इज दैट पर्सन, कि दुनिया के थपेड़े खाए, इतनी जिंदगी गुजारी, कब्र में भी इतनी, उसके बाद आखिरत का वो कयामत का दिन, एंड आफ्टर एवरी गोइंग थ्रू एवरीथिंग, यू डोंट इवन गेट टू सी अल्लाह, you don't even get a single glimpse of Allah. How unlucky is that person, isn't it? कि हम लोग अल्लाह 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 करते रहते और अगर अल्लाह का दीदार नसीब ना, तो हम ऐसे मायूस नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमा दिया कि सदका मत करो दिखावे के लिए, अगर सदका करो तो बस तुमको सामने अल्लाह नजर आ जाना चाहिए। वो इंसान नहीं जिसको तुम फटकारते हो, धुतकारते हो, गालियां देते हो, धक्के मारते हो, यू लुक डाउन अपॉन देम। तुमको वो इंसान नजर ही नहीं आना चाहिए, तुमको तो वहां अल्लाह का चेहरा नजर आना चाहिए कि ये जो भी है मैं इसको बस दे दूं। चाहे वो, अभी हदीस पढ़े, चाहे वो चोर हो, प्रोस्टिट्यूट हो, मालदार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो बस अल्लाह को राजी करने के लिए देना था, मैंने दे दिया, दैट्स इट। जब ये नियत होगी तभी तो अल्लाह का चेहरा नजर आएगा, द प्लेजर ऑफ अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा तुनफिकू,
और जो कुछ तुम खर्च करोगे मिन खैरिन, चाहे माल में से या कोई भलाई में से, वॉट एवर यू डोनेट युवफ़ा इलैकुम, इसको भी सर्कल कर लेना। युवफ़ा वर्ड मिलता है, पूरी पूरी वफा की जाएगी, यानी यू विल बी फुल्ली पेड बैक। तुमने ये जो दिया है ना अभी, वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ, वो पूरा 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 हिसाब किताब के साथ बढ़ा चढ़ा कर तुमको दिया जाएगा। ये किसकी प्रॉमिस है? अल्लाह अल्लाह सुब्हान की तआला की। प्रॉमिस है। और अल्लाह ने फरमाया व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम लोग नहीं, तुम जुल्म किए जाओगे। There will be no wrong, no mistake, no error, कोई कमी नहीं होगी, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा जैसे अल्लाह ने प्रॉमिस किया है। अब मुझे बताइए कि अल्लाह की क्या इसके पीछे हिकमत है कि अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को अपाहिज बनाया, किसी को तंदुरुस्त बनाया। अल्लाह चाहता तो हर एक को बराबर का कर देता, तो फिर हमको भी उसी ने दिया, चाहता तो उस गरीब को भी दे देता ना अल्लाह ही। लेकिन अल्लाह की क्या शान है कि उसने हमको दिया और अब हमसे कह रहा है कि तुम उसको दो। क्या हम ऐसा करते? डू वी डू दैट? जब हम हमारे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो क्या हम कुछ पैसे अपने बच्चों के हाथ में देते हैं कि बेटा फकीर को देकर आओ? डू वी डू दैट? अगर नहीं करते तो आज कुरान से सीखना है और वही करना है जो अल्लाह ताला हमारे साथ कर रहे हैं कि हमको दिया और हमसे कहा कि तुम उसको दो, अब तुमको और मिलेगा। तो तुम अपने बच्चे को बोलो कि बच्चा तुम अपने टॉयज, भले तुम्हारे यूज्ड टॉयज है ना, वो उसके साथ शेयर कर लो, मैं तुमको और लाके दूंगी। डू वी डू दैट? अगर आपका बच्चा कोई गलती करे तो हम उसको क्या करें? कहेंगे कि जाओ पहले सदका करके आओ, तो मैं भी तुमको माफ कर दूंगी और अल्लाह भी तुमको माफ कर देगा इंशाल्लाह। Why don't we learn from Quran? So inshallah we will learn and we will make our own, our life jannah, इधर भी और उधर भी। Such a beautiful आयत है ना। सहाबा इकराम का ये हाल था कि जब भी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई बुराई उनसे हो जाती तो वो फौरन सदका कर देते, तब वो सुकून में आ जाते। इतना अल्लाह का खौफ था उनके दिल में। आज जो हम लोग डिप्रेशन के शिकार है, गुस्सा आता है हमको, मायूस हो जाते हैं, तो इन सब का इलाज सदका है। आप अगर डिप्रेशन में हो तो बस कीप ऑन स्माइलिंग, आपका डिप्रेशन चला जाएगा। आप जाओ, अगर आप डिप्रेशन में हो तो हॉस्पिटल विजिट करके आओ, आपका डिप्रेशन खत्म। अगर आप मायूस हो तो आप है ना ऐसे ब्लाइंड स्कूल में चले जाओ। अगर आप मायूस हो गए हो ना लाइफ से, तो आप क्या करो? ब्लाइंड स्कूल में चले जाओ। वो ब्लाइंड बच्चे लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, खेल भी रहे, एंड दे आर मैनेजिंग देयर ओन लाइफ। They travel by this Mumbai local trains. Can you imagine? फिर हमारे पास 2 आंखें है, 2 हाथ है, 2 पैर है, किस चीज की मायूसी? Why are you so hopeless? तो एक मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, बल्कि मोमिन का तो अब देखिए कुरान पढ़ के हमारा तो इलाज ही कुछ और है। क्या है हमारा इलाज? हमारा हर चीज का इलाज हमको कुरान में मिल रहा है। दुनिया में हम सीखते हैं कि बस पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, ऑल योर लग्जरीज विल गिव यू हैप्पीनेस। अल्लाह ताला फरमा रहे कि सदका करो, सदका करो, सदका करो, शेयरिंग विल गिव यू हैप्पीनेस। आपको कौन सी चीज का एक्सपीरियंस मिला है आज तक? जमा करने से खुशी मिलती है या शेयर करने से खुशी मिलती है? टेल मी योर ओन शेयर करने एक्सपीरियंस। से बाजी।
Have you experienced or you're just saying like that? No, Baji, experience. Whoever has experienced, please raise your hand and share your experience. Okay. अभी इसके बाद मैंने सोची थी कि हमारी 273 तक हो जाएगी, रुकू कंप्लीट होगा, बट वी जस्ट कांट रश लाइक दैट. हाँ, शेयर करो आप लोग, नसरीन, सना, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर. बोलो. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. हाँ बाजी, देते अल्हम्दुलिल्लाह से खुशी भी महसूस होती है. और एक और बात बतानी थी, हमारे बच्चे बाजू में जो नेबर रहते ना, तो वो लोग खाना ना तीखा खाते, तो हम बोले कि ना थोड़ा फीका बनाते, तो उनको भेज दिए. मतलब मेरे को इतना रोजा था तो मुझे अंदाजा नहीं था. मैं बोली अल्लाह करे खाना बराबर हो, बच्चों को वहाँ पे पसंद आए. तो लोग ने खा ली, तो बोले आज तुम कैसे फीका बना रही. तो मैं बोली मैंने बस नियत करी थी कि तुमको अच्छा लगे, तो अल्लाह ने वो नियत से तुमको मतलब खाना भी मतलब फीका बना. तो मतलब मुझे खुशी भी बहुत मिली. हाउ नाइस नसरीन, वेरी गुड, माशाल्लाह. may अल्लाह ब्लेस यू. ये होता है अच्छी नियत करना. ओके. अच्छा, अभी एक और छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए. आपके रिफ्लेक्शंस में जरूर सुनूंगी. आफ्टर 3 minutes वी हैव वन मोर शॉर्ट स्टोरी टू शेयर. ये कोई हदीस नहीं है, बट बहुत ही फेमस स्टोरी जो शेयर की जाती है कि एक कारपेंटर था, बूढ़ा हो गया था. कारपेंटर जो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, अब वो बूढ़ा हो गया था, वो रिटायर होना चाहता था. तो उसने अपने मालिक से कहा कि बॉस अब बस मैं है ना रिटायर हो जाऊं. तो वो बॉस को उसका काम बहुत पसंद आता था, वो बहुत अच्छा कारपेंटर था. तो बॉस ने भी बोला अच्छा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक मेरा लास्ट असाइनमेंट तुम पूरा कर लो, एक फर्नीचर तुम बनाकर दे दो. अब जो है ना कारपेंटर ने दिल बना लिया था ना कि उसको तो रिटायर होना है, अब काम नहीं करना है. तो लेकिन बॉस की बात माननी थी, तो उसने हाँ कर दी. और है ना बहुत ही उसका दिल नहीं था उसका, बेदिली से बोझ समझकर उसने क्या किया, वो काम पूरा किया. तो ऐसा काम कैसा होता है, क्वालिटी होता है. इट वाज अ शॉडी एंड इंफीरियर क्वालिटी वर्क जो उसने कर दिया जान पे आकर. बॉस ने उसको जो काम दिया था उसने बहुत ही बुरा किया. जब बॉस आया और उसने देखा तो बॉस समझ गया. अब बॉस ने क्या किया, अपने जेब में से उस घर की चाबियां निकाल कर उस कारपेंटर के हाथ में दे दी और कहा कि ये तो तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था और मैंने सोचा कि तुम अपने घर का फर्नीचर खुद ही अपने हाथों से बनाओ. और वो मालिक चला गया, उसको रियलाइज हो गया था. अब कारपेंटर का क्या हाल हुआ, ही वाज शॉक्ड, व्हाट अ शेम. वो सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि ये तो मेरा अपना घर है जिसे मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे बनाता, बेहतरीन, जबरदस्त. नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो दुनिया में हम जो कुछ काम कर रहे हैं, जो एवरी सेकंड हमारा अमल है, इससे हम अपने आखिरत का घर बना रहे हैं. जो कुछ हम बनाएंगे अल्लाह ताला आखिरत में हमसे कहेंगे तुमने जो करके आए ये तुम्हारा घर है. अब तुमने अच्छा किए तो जन्नत तुम्हारा घर है, तुमने बुरा किए तो जहन्नम तुम्हारा घर है. जब उस कीज मिलेंगी अपने हाथ में अपने बनाए हुए घर की, तो सोचेंगे काश कि मैं इसे इससे अच्छा बनाता. तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी कयामत नहीं आई, अभी हम जिंदा है. अभी भी ये रियलाइजेशन, इवन दो इट इज अ लेट रियलाइजेशन, कि दुनिया आखिरत की खेती है. हम क्या करें, अपना हर अमल बेस्ट दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के पास बेस्ट पाएंगे, चाहे वो सदका हो या एक अच्छी बात. तो ये थी वो स्टोरी. Any morals that you learn from here?